Hello, I'm Neera Paritosh. I have made this program Parenting the Parent for the parents whose children are from the age group of 3 to 12. This program has been made for all the individuals. वो बड़े हों या छोटे हों, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर एज ग्रुप को कुछ बातें जानने की ज़रूरत है. इसका मतलब मैंने तो सिर्फ एज ग्रुप रखा 3 to 12, उनके पेरेंट्स, बट आई फॉर द पास्ट 32 years आई एम टीचिंग 11th and 12th only. And I am getting the students who are of the age group of 16, 17 or 18. Why didn't I keep that? क्योंकि हमने चाहे पेरेंट्स टीचर मीटिंग की, चाहे जितने भी बच्चे, around 5,000 kids came to me and I interacted with them also. But I concluded that in that age group the child cannot change. So if we want to change him, we will have to change him earlier. So it means this is also said कि छोटे बच्चे तो गीली मिट्टी की तरह होते हैं, तो आप उन्हें जैसे ढाल देंगे वो ढल जाएंगे. That is why I made this program. And I didn't want to teach the kids. I wanted to teach the parents. Because ultimately the child becomes a true copy of his parents. Because I can say this because in the parents teacher meeting, who were really very good according to us behavior wise, the parents were also very good. So I could conclude that definitely the personality of the parents affects the child. इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी पेरेंट्स खराब थे, पेरेंट्स वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन किसी फेस पे, किसी स्टेप पे कोई कमी रह गई. For example, if one of the family member, generally the grandparents are very possessive about the grandson, और वो उसको शील्ड ही करते रहते हैं, तो हो सकता वो रीज़न हो सकता कोई और रीज़न हो, दैट ही फाउंड अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु forced him to acquire some habits from them. जो भी कुछ हुआ होगा, लेकिन बच्चा हमारी रीच से बाहर हो गया behavior wise. Now here you will have to promise yourself. You're not promising with me. You're promising yourself कि हम आपको जो भी बताएंगे, जो भी कुछ हो सकता है, वो आप ज़रूर करेंगे. These are called the techniques of healing. It will definitely bring a total change in the personality of the person. Children, I'm talking about the parents only. But it will take time. अगर आपको समझ नहीं आया, मैं दोबारा से समझाती हूँ. आपने नर्सरी से लेके जो भी पढ़ाई आपने की 12वीं तक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वॉट एवर यू हैव डन, एक दिन में वो नहीं हो गई थी, उसके लिए टाइम लगा था. तो इसमें भी टाइम लगेगा. हाँ, उतना टाइम नहीं लगेगा, पर इसमें भी टाइम लगेगा. और द अदर एग्जाम्पल इज फ्रॉम नेचर. आप कोई भी बीज बोते हैं, एक ही दिन में तो पेड़ नहीं बन जाता ना. इट टेक्स टाइम. सो इट मीन्स वॉट एवर वी डू फॉर हीलिंग ऑफ द पेरेंट्स, इट विल टेक टाइम. देन टाइम के सेंस में अगर बात करें तो वी कैन से इट फॉर द चिल्ड्रन. दिस इज कॉल्ड द नेचुरल टाइम. जैसे एक आम का पेड़ 5 साल बाद फल देना शुरू होता है, एक बैम्बू ट्री जो है वो शुरू में 9 साल तक इट इज सेड कि वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद सीधा ही 130 फीट या उससे भी ज़्यादा हो जाता है. सो इट इज़ द बेसिक नेचर ऑफ दैट थिंग. सो योर चाइल्ड ऑल्सो हैज़ गॉट सम नेचर. तो जो उसको भगवान की तरफ से मिला है वो हम चेंज नहीं कर सकती. अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो अगर वही सेम एग्जाम्पल हो नेचर का, आपने बीज जहां भी बोया था, what kind of land was that? It really makes a difference. If the land is very fertile, definitely the best quality product or the best quality plant you're going to get. Now वो मिट्टी आप है. So here, if my grandfather used to say when he had taken the new house कि हाँ, हमारे घर के पहले तो बहुत ही खुली जगह होती थी, पूरा एरिया खाली पड़ा हुआ था. So they made a field, they made a farm there. My mother is the single sister of 6 brothers. So all my mamas worked very hard to make that garden very beautiful. So we used to sit there every evening, and all the trees of guava and those plants of different vegetables were so beautiful.
बिकॉज ही यूज टू से द लैंड इज वेरी फर्टाइल, आप जो बोगे यहाँ पे उग जाएगा. सो लैंड इज सो इम्पॉर्टेंट. सो इट मीन्स द नेचर इज गिविंग अस सम लेसन्स. Number one, that the parents, the type of parents they are and how much work they have done on themselves, it matters. Second, आप जब बीज डालने लगते हैं तो लैंड ऊपर से कैसी होती है, कंकड़ पत्थर, सूखी मिट्टी और बहुत कुछ गंदा होता है उसमें. तो पहले उसे साफ किया जाता है, फिर उसमें खुदाई की जाती है. तब तक खुदाई करते हैं जब तक नीचे से मिट्टी गीली ना नजर आने लग जाए. अगर मिट्टी गीली नजर आती है तब बीज डाला जाता है. सो इट मीन्स whatever the parents have understood from their atmosphere, whatever they have taken from their experiences, from the people in their lives, whatever they have taken, अब उनको देखना पड़ेगा उसमें से क्या चेंज करना है. एंड दी थर्ड थिंग इज, जैसे मैंने बोला कि so many people were working to make that place beautiful. सो इट मीन्स आपने अगर अपने बच्चे को ब्यूटीफुल बनाना है तो पहले आपको अपने पे काम करना पड़ेगा, और बिना एफर्ट्स के ये नहीं होगा. यू विल हैव टू गिव से मंथ्स और ईयर्स टू मेक योर सेल्फ बेटर फर्स्ट. ओनली देन यू कैन कीप एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर चाइल्ड. देन देयर इज अनदर सेइंग, आप जब टेलर के पास जाते हैं वो हमेशा ये कहता है नया कपड़ा बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, लेकिन पुराना कपड़ा ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा. तो नया कपड़ा बनाने में कम टाइम लगेगा. इट विल टेक से ओनली 2 days or 3 days, especially if it's a ladies garment. And in the next year, suppose you have put on some weight and you want to wear the same lehenga or same outfit, तो आप टेलर के पास जाते हैं उसको खुलवाने के लिए. So it takes more time, more efforts. So similarly, in case of parents, it takes more time. In case of children, it takes lesser time. So we can say this also, कि इंस्ट्रक्शंस हमारी होंगी लेकिन कोशिश आपकी. हम तो सब कुछ बता देंगे कि आप ये करिए, आप ये करिए, लेकिन करना तो आपने ही है ना. सो वॉट एवर वी कैन टेल, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प ईच एंड एवरीबडी. बट कोशिश आपकी होगी, और वो कोशिश दैट शुड बी कंसिस्टेंट. मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपने 5 दिन कोशिश कर ली और उसके बाद नहीं की. ऐसा नहीं हो सकता. आपको कंटिन्यूसली कोशिश करनी पड़ेगी. टेक अनदर एग्जाम्पल, आप खाना रोज खाते हैं, आप ब्रेकफास्ट भी करते हैं, आप लंच भी करते हैं, आप डिनर भी करते हैं. अब आप कहिए आपने 10 साल खाना खा लिया, मत खाइए अब. ऐसा नहीं हो सकता. यू विल हैव टू ईट एवरीथिंग टू सर्वाइव. सिमिलरली वी विल हैव टू पुट इन एफर्ट्स एवरी डे टू कीप आवरसेल्फ बेटर. एक बात और, आप खुद ही अगर एज्यूम कर लेते हैं हाँ ये प्रोग्राम तो मेरे काम का नहीं है, वो हमें कहेंगे कि आप यहाँ टाइम लगाइए, मैं नहीं लगा सकता, मेरी तो जॉब है, और वो मुझे ये छोड़ने को कहेंगे, मुझे ये छोड़ने को कहेंगे, मैं नहीं कर सकता. सो यू हैव एज्यूम थिंग्स ऑन योर ओन. प्लीज डोंट डू दैट. इतनी सिंपल चीज़ें शायद आपको कुछ भी ये सब एफर्ट्स ना करने पड़े. आप थोड़े से टाइम फॉलो करके देखिए. इफ़ यू गेट मैजिकल रिजल्ट्स, मैजिकल रिजल्ट्स का मतलब आपने यहाँ एफर्ट्स करे, रिजल्ट सामने दिखने लग जाता है. वैसे यह बोला जाता है कि 21 days to 40 days it takes to show the results. बट हियर इन दिस केस आई कैन से आपको शायद 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद ये रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा. एंड द रिजल्ट विल बी मैजिकल. मैजिकल इन द सेंस आप किसी के बारे में, यहाँ पे जो हमने आपको कहा, आप कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं और वहाँ वो चेंज आपको वहाँ नज़र आएगा. सो द रिजल्ट्स विल बी मैजिकल. नहीं तो आप नहीं करना चाहते तो जो जैसा था वो तो वैसा है ही. तो एक डिफरेंस होता है बच्चे के पलने में और बच्चे को पालने में. वो डिफरेंस आप शायद समझ सकते हैं. एक और चीज़ जो आपको याद रखनी होगी, दैट इफ़ यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट द अदर पर्सन, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे कि इतना पढ़ने लिखने के बाद और इतने साल नौकरी करने के बाद, इतने साल बच्चों के साथ रहने के बाद जो भी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ वो गलत नहीं है, तो आप कभी वो चेंज नहीं ला पाएंगे. दूसरी बात, यहाँ पिक एंड चूज नहीं होता. आपको जो बताया होगा
वो पूरा करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने एक चीज़ कर ली, दूसरी 2 नहीं की, बाकी 2 नहीं की। ऐसे नहीं हो सकता। यू विल हैव टू डू एवरीथिंग।